today we have to start with chapter number 7, permutations and combinations. Permutations and combinations. Permutations and combinations. So first we'll discuss the definition of combination, permutation, and then we'll proceed further. For example, first you have to discuss the definition of this permutation and combination. So let's start with one example. Suppose I am having some English alphabets A, B, C, D, E, F, G, and H. We are given these English alphabets. How many English alphabets are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Done? Now, Dravya, select any three letters. Select any three letters. Bolo. Dravya, select any three letters from this given English alphabets. Dravya is not replying. Tanisha? Huh? A, C, D. Suppose first selection is A, C, D. Now, Kashish, select any three letters from this given alphabets. कोई सिलेक्ट करेगा बी सी डी है ना, और कोई फोर्थ स्टूडेंट आएगा सिलेक्टिंग ए एफ जी है ना, कोई सिलेक्ट करेगा ई एफ जी. So different selections are there. Done. So these are the process of selection. Which process is there? Select any three letters. That is the process of selection. This is process of selection है ना. वर्ड पर आप फोकस करो, मैं क्या बोल रहा हूँ. Alphabets are given. From this alphabet we are selecting three letters. So from the process of selection, from the process of selection, we are getting different combination of these letters. We are getting different combination. What we are getting? We are getting different combinations. Combinations. This is one combination, second combination, third combination, fourth combination. Number of combinations are there. है ना, कोई ए बी सी सिलेक्ट करेगा, कोई सी ई एफ सिलेक्ट करेगा, कोई डी एफ जी सिलेक्ट करेगा, कोई भी सिलेक्ट करेगा. So from the process of selection, we are getting different combinations of letter, and combinedly these combinations are differently. This each combination is known as combinations. है ना, हर एक को बोलेंगे combination और combinedly हर एक को साथ में बोलेंगे combinations. Done. So this is the combination. So what is the definition of combination? So here different number of combinations are resulted from the process of selection. What is our conclusion? Total number of combinations are resulted from the process of selection. एग्जाम्पल करेंगे और क्लियर होगा. अभी आपको इतना समझना है कि हम जो डिफरेंट सिलेक्शन कर रहे हैं, सो फ्रॉम द डिफरेंट सिलेक्शन वी आर गेटिंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस. डन. तो ये था कॉम्बिनेशंस जनरेटेड फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. नाउ नेक्स्ट वर्ड इज परम्यूटेशन. ये परम्यूटेशन क्या होता है? परम्यूटेशंस. So permutation is nothing but the different number of possible arrangement of each combination. Suppose पहला जो किसी ने सिलेक्ट किया था वो था ACD है ना. फर्स्ट सिलेक्शन was ACD. First selection was ACD. Now how many different possible ways are there in which we can select this ACD? किसी ने ACD सिलेक्ट किया, कोई इसको ADC बोलेगा, कोई इसको CDA बोलेगा,
कोई इसको DCA बोलेगा। तो देखो सिलेक्ट तो हम ACD करें लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेज में कर रहे हैं ना, सीक्वेंस इसकी डिफरेंट आ रही है। सो कॉम्बिनेशन, that means each combination can be arranged in different ways, so hence we are getting different number of permutations. Here we are getting different permutations. So different number of permutations are generated from the different ways of arrangement of this each combination. ये एक combination था, उसको आप different way से आप arrange करेंगे तो आपको permutation मिलेगा। Done. So what is permutation? Permutation is nothing but the number of possible arrangement. आप किसी भी combination को different कितनी way से आप arrange कर पा रहे हो। Done. That is known as permutation. So यहाँ पर definition लिख सकते हैं, it's a total number of possible arrangement. Total number of possible arrangement. Total number of possible arrangement is nothing but the permutation, and total number of ways of selection, that selection is nothing but the combination. Is that clear? इतना याद रहेगा। इन शॉर्ट आपको इतना याद रखना है कि सिलेक्शन आएगा तो कॉम्बिनेशन होगा, और जहां पर भी अरेंजमेंट आएगा है ना, अरेंजमेंट, दैट इज अवर परम्यूटेशन। क्लियर? ये सिर्फ डेफिनेशन थी है ना। नाउ वी हैव टू स्टडी डिफरेंट नंबर ऑफ combinations to find the different number of combinations, permutations. Done. And also permutation and combination. So before studying this permutation and combination, we have to study one important principle. Done. That is fundamental principle of counting. So before going to study permutation and combination, we have to study fundamental principle of counting. जिसका एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। What is fundamental principle of counting? Topic is fundamental principle of counting. So what is fundamental principle of counting? For that, let us now consider again one example. Example से इसको understand करेंगे, ठीक है? For example, we are defining one event A. We are having event A and another event B. So we have to find a number of ways by which this event A and event B both can occur. Suppose we have to tie, हमारे पास 3 टाई है, टाई पहनते ना वो, टाई T1, टाई T2 एंड टाई 3। हमारे पास 3 टाई है और बेल्ट है हमारे पास, सपोज B1, B2, B3 एंड B4, टोटल 4 बेल्ट है हमारे पास। So here question is find the number of ways by which we can wear tie and belt, है ना। क्वेश्चन क्या है, आपको फाइंड करना है नंबर ऑफ वेज, नंबर ऑफ वेज by which we can wear tie and belt, है ना। आपको इसमें प्रैक्टिकल केस स्टडी करना है। प्रैक्टिकल मतलब हम बेल्ट और टाई पहनेंगे तो एक टाई और एक ही बेल्ट पहनेंगे, ऐसा नहीं हो कि 2 टाई पहन लेंगे, ठीक है। सो प्रैक्टिकली आपको सोचना है। सो टोटल हाउ मेनी वेज आर देयर बाय विच वी कैन वियर आउट ऑफ दिस 3 टाई एंड आउट ऑफ दिस 4 बेल्ट, कितने तरीके से हम पहन सकते हैं। देखो, तो उसको हम बोलेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये कैसे वर्क करता है, तो पहले तो हम इसको प्रैक्टिकली स्टडी करेंगे कैसे पहन सकते हैं। सो वी आर गेटिंग डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हम काउंट कर रहे हैं, है ना। तो पहले सपोज हमने टाई T1 कंसीडर की कि हमें टाई T1 पहनना है, तो टाई T1 पहनने के बाद हमारे पास दूसरा क्या ऑप्शन है, ये जो 4 बेल्ट है उसमें से आप किसी एक को पहन सकते हो। सो टाई T1 के साथ आप बेल्ट 1 को भी पहन सकते हो, बेल्ट 2 को भी पहन सकते हो, बेल्ट 3 को भी पहन सकते हो एंड बेल्ट 4 को भी पहन सकते हो। तो 4 डिफरेंट वेज हुआ, यस और नो। उसके बाद कोई टाई T1 नहीं, कोई टाई T2 सिलेक्ट करता है ना। तो टाई T2 सिलेक्ट करेगा तो भी उसके पास कितना ऑप्शन होगा, टाई T2 है उसके बाद वो बेल्ट 1 को पहनेगा या फिर वो बेल्ट 2 को पहनेगा या फिर बेल्ट 3
या फिर बेल्ट 4 सिलेक्ट करेगा। तीसरा भी ऑप्शन है ना, आइदर ही विल सिलेक्ट टाई 3 टू वियर, टाई 3 पहनना है तो टाई 3 के साथ वो क्या पहनेगा, बेल्ट 1 पहनेगा, या फिर बेल्ट 2 पहनेगा, या फिर बेल्ट 3 पहनेगा, या फिर बेल्ट 4 पहनेगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइप सिलेक्ट करने के बाद वो 2 बेल्ट लगाएगा, है ना, वो एक ही बेल्ट लगाएगा। तो यहाँ पर देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, दैट इज बाय हाउ मेनी वेज वी कैन वियर टाई एंड बेल्ट। तो देखो यहाँ पर कितने हैं, आप एक टाई के साथ टोटल 4 डिफरेंट तरीके से आप बेल्ट पहन सकते हो। यहाँ पर एक टाई के साथ 4 डिफरेंट वे से आप बेल्ट पहन सकते हो। यहाँ पर एक टाई के साथ 4 डिफरेंट वे से आप बेल्ट पहन सकते हो। आपके पास ऑप्शन है, आप टाई 1 पहनो, या फिर दैट मीन्स वियर टाई 1 और मतलब एडिशन, आप टाई 2 पहनो, और या फिर आप टाई 3 पहनो। तो ये चारों एडिशन में है ना। सो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बाय विच वी कैन वियर टाई एंड बेल्ट इज 1 into 4, 4 plus 4 plus 4, so that is equal to 12. Total 12 different ways are there by which we can wear tie and belt. Done. So फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो विदाउट डूइंग दिस, है ना। तो उसके लिए हम इसका स्टेटमेंट लिखते हैं, व्हाट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद ये प्रिंसिपल का यूज करके हम डायरेक्टली 12 आंसर डिराइव करेंगे। कैसे, देखो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सेज दैट, दिस इज स्टेटमेंट, आपको इसको सिर्फ समझना है, याद नहीं रखना है। So if there are m ways to do event A, we are having event A and event B। देखो हमारे पास 2 इवेंट है ना, टाई पहनना और बेल्ट पहनना। सो if there are if there are m ways to do इवेंट A, इवेंट ए को करने के लिए हमारे पास टोटल एम तरीके हैं, एम वेज आर देयर। यहाँ पर कितने हैं, 3 हैं। डन। सो देयर आर टोटल एम वेज टू डू इवेंट ए एंड associated with each event, associated with each event ए। इवेंट ए को तो कर दिया, लेकिन इवेंट ए के साथ एसोसिएटेड कितनी इवेंट है टोटल, देखो इसके साथ 4 है, इसके साथ और इसके साथ और 4 इवेंट। सो दिस आर द इवेंट्स एसोसिएटेड विद द इवेंट ए, है ना। टाई पहनने के बाद उसके साथ एसोसिएटेड इवेंट कौन सी है, टाई पहनने के बाद आप है ना बेल्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो दैट इज नोन एज इवेंट्स एसोसिएटेड विद दिस इवेंट ए। So if there are total number of n ways to do event A and associated with each event A, event A के साथ associated event B is there, associated with each event A, event B can occur, event B can occur in n number of ways, n number of ways। event E कितने तरीके से हो रही है, n different ways are there, and for event B total n different ways are there। event B occurs in associated with the event A। Done. And hence we can say that according to according to fundamental principle of counting, we can say that event A and event B, event A and event B can occur in m cross n ways, m multiplied by n ways, है ना। देखो अभी फिर से, we are having event A can occurs in how many ways, 3 ways। so this is 3 ways associated with each event of A, event B can occurs in how many ways, 4 ways, so multiply by 4। so this entire event, that means selection of tie and belt, that can occur in total how many ways, 3 into 4, 12 ways is our answer। देखो ये कुछ नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर मिलेगा। so this is known as fundamental principle of counting। clear students? हेलो, सेकंड चैप्टर मतलब, हाँ ऐसा ही कुछ समझो आप, है ना। ये समझ में आ गया। अभी देखो ये एग्जाम्पल को और थोड़ा है ना हम
इसकी डेप्थ और इंक्रीज करते हैं। हमारे पास सिलेक्शन के लिए टोटल 2 इवेंट थी, इवेंट ए, इवेंट बी। अभी हम सिलेक्शन और बढ़ाते हैं, है ना, देखो तो आपको और क्लियर हो जाएगा। वन मोर एग्जांपल, अभी आपके पास इवेंट ए, इवेंट ए, इवेंट बी और एक इवेंट सी भी है। दैट मीन्स आपके पास टोटल 3 टाई हैं, टाई 1, टाई 2, टाई 3। 3 टाई सिलेक्ट करने के बाद आपको आपका बेल्ट सिलेक्ट करना है पहनने के लिए। आपके पास 4 बेल्ट है, B1, B2, B3 एंड B4। और आपके पास अभी एक वॉलेट भी आ गया, देखो W1, W2। आपको एक वॉलेट भी सिलेक्ट करना है। तो आप सुबह रेडी होके बाहर निकलते हो घूमने के लिए, है ना, ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के बाद, तो आपको टाइट T1 पहनना है। उसके बाद टाइट टाइट T1 सिलेक्ट करने के लिए आपके पास टोटल 3 ऑप्शन है। उसके बाद टाइट सिलेक्ट करने के बाद आपको एक बेल्ट सिलेक्ट करना है, और बेल्ट सिलेक्ट करने के बाद आपके पास एक वॉलेट भी सिलेक्ट करना है। टोटल 3 इवेंट्स आर देयर। सो आप टोटल कितने तरीके से, है ना, टाई, बेल्ट और वॉलेट सिलेक्ट कर सकते हो, वो आपको कैलकुलेट करना है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। डन। तो इसको पहले आप पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं, इसको देखते हैं। चलो, तो सपोज हमने टाई T1 सिलेक्ट किया, है ना। टाई T1 सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास बेल्ट B1 रहेगा, B2 रहेगा, बेल्ट B3 रहेगा एंड बेल्ट B4 भी रहेगा। और बेल्ट पहनने के बाद हमारे पास सिलेक्शन के लिए वॉलेट भी रहेगा। सपोज आपने टाई T1 सिलेक्ट कर ली, बेल्ट B1 सिलेक्ट कर लिया, और फिर आप वॉलेट W1 सिलेक्ट कर सकते हो या फिर वॉलेट W2 सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। तो B1 के साथ 2 ऑप्शन और जुड़ गए। सिमिलरली आपने टाई T1 सिलेक्ट की, उसके बाद बेल्ट 2 सिलेक्ट किया, और बेल्ट 2 सिलेक्ट करने के बाद आपके पास 2 और ऑप्शन रहेंगे, आप वॉलेट 1 सिलेक्ट करो या फिर वॉलेट 2 सिलेक्ट करो। डन। सिमिलरली हियर वॉलेट 1, वॉलेट 2, और B4 के साथ भी वॉलेट 1, वॉलेट 2। डन। सो हियर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज। टाई को आपने 1 टाइम सिलेक्ट किया, बेल्ट को सिलेक्ट करने के लिए आपके पास टोटल 4 डिफरेंट वेज है, और वॉलेट के लिए आपके पास 2 है। ये टाइट T1 के लिए होगा। सिमिलरली टाइट T2 के लिए भी होगा एंड T3 के लिए भी होगा। सेम T2 के लिए B1, B2, B3, B4, उसके लिए W1, W2। सो हियर अगेन नंबर ऑफ पॉसिबल वेज 1 into 4 into 2 होगा, है ना, ये प्लस आएगा। यहाँ पर भी क्या होगा, 1 into 4 into 2 होगा। तो अभी कितने तरीके हुए टोटल, 8 plus 8 plus 8 equal to total 24 ways are there by which you can select tie, belt and your wallet. Done. लेकिन इसको हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अरिथमेटिक से करेंगे तो क्या होगा, देखो नंबर ऑफ वेज बाय विच इवेंट के ए कैन अकर, है ना। तो दैट इज m into n into 3 इवेंट, तो p। सो m इज नंबर ऑफ वेज बाय विच इवेंट k कैन अकर। सो नंबर ऑफ वेज बाय विच इवेंट a कैन अकर इज 3 वेज। आप 3 तरीके से टाई सिलेक्ट कर सकते हो। देन नंबर ऑफ वेज बाय विच इवेंट बी कैन अकर 4। आप 4 बेल्ट में से किसी बेल्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन सिलेक्ट योर वॉलेट। आपके पास 2 वॉलेट है, तो आप 2 तरीके से आप अपना वॉलेट सिलेक्ट कर सकते हो। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग सेज दैट टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस इवेंट A, B and C occurs is equal to 3 4 जा 12 2 जा 24। डायरेक्ट आंसर मिलेगा। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? डन। ये आपका था फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। उसके बाद आपको 2 और प्रिंसिपल याद रखने हैं जो मैंने ऑलरेडी यूज कर दिए हैं, है ना। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। कौन सा प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। सो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन मीन्स इवेंट ए, है ना, हम यूज करेंगे इवेंट ए एंड इवेंट बी, दोनों को कंसिडर करना है। इवेंट ए एंड बी आपको टाई भी पहनना है और बेल्ट भी पहनना है। देखो आपको रेडी होने के लिए ये केस कंसिडर करें
तो आपको रेडी होने के लिए आपको टाई भी पहनना है, बेल्ट भी पहनना है और आपको एक वॉलेट भी सिलेक्ट करना है। सो ए एंड बी एंड सी, तो उसके लिए आपको एडिशन करना है, नहीं, इसके लिए आपको क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन और प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। एडिशन मतलब और, दैट मीन्स फॉर एग्जांपल इवेंट ए है तो आपको T1 और T2 और T3, आप तीनों में से किसी एक टाई को सिलेक्ट करना है, तो वहां पर और आएगा। तो यहाँ पर हमने जो प्लस वाला साइन यूज किया ना, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तीन में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना है। और जो मल्टीप्लीकेशन वाला साइन यूज किया 1 इंटू 4 इंटू 2, दैट मीन्स इवेंट ए एंड इवेंट बी एंड इवेंट सी तीनों इवेंट को साथ में होना है, तो इसके लिए आपने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन और इसमें से सिलेक्शन के लिए आपने यूज किया प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यहाँ पर आप प्रिंसिपल ऑफ एडिशन यूज कर रहे हो और ये इवेंट को सिलेक्ट करने के लिए आप प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यूज कर रहे हो। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के लिए क्या करना है, आपको ए और बी के लिए आपको मल्टीप्लाई करना है ना। 3 तरीके से आप टाई सिलेक्ट कर रहे हो, 4 तरीके से आप बेल्ट सिलेक्ट कर रहे हो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 12 होंगे। डन। लेकिन आप इवेंट ए और इवेंट बी, देखो आपके पास 3 टाई है और 4 बेल्ट है, तो आपको सिर्फ टाई पहनना है या फिर बेल्ट पहनना है। मैं ऐसा लिखूं कि इवेंट ए और इवेंट बी, दैट मीन्स आपको टाई पहनना है या फिर आपको बेल्ट पहनना है, तो आप टोटल कितने वे से कर पाएंगे। अब तीनों टाई पहन लो या फिर चारों बेल्ट एक बार बारी बारी से पहनो, टोटल 7 वेज आर देयर। एक बार आपने टाई पहन ली, एक बार आपने दूसरी टाई पहन ली, एक बार आपने तीसरी टाई पहन ली, या फिर आप एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। So here, how many three-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5? Total 5 digits are given. Given digits are 1, 2, 3, 4, 5. So total 5 digits are there. We have to form 3-digit number. Done. Total how many 3-digit numbers can be formed by using this given digits 1, 2, 3, 5, 4, 5. 1 to 5. Assuming that repetition of digit allowed, and second case repetition of digit is not allowed. We have to consider 2 cases. Done. First case in which repetition is allowed, RA, repetition is allowed. Second case in which repetition is not allowed. ये क्या होता है वो भी देख लो चलो। So what is question? Question is how many 3-digit numbers can be formed. So to solve this numericals based on fundamental theorem of counting, we will use block diagram, है ना। ब्लॉक डायग्राम यूज करेंगे। दैट मीन्स हम एक ऐसे ब्लॉक कंसिडर करेंगे। ये ब्लॉक क्या इंडिकेट करता है, देखो 3-digit नंबर। तो फर्स्ट ब्लॉक इंडिकेट्स नंबर ऑफ वेज बाय विच इवेंट ए कैन अकर, सेकेंड ब्लॉक इंडिकेट्स नंबर ऑफ वेज बाय विच इवेंट बी कैन अकर, एंड थर्ड ब्लॉक इंडिकेट्स नंबर ऑफ वेज बाय विच इवेंट सी कैन अकर, है ना। हमें 3-digit नंबर फाइंड करना है, तो यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस डिजिट को सिलेक्शन के लिए हम इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी डिफाइन कर देते हैं, है ना। और ये जो बॉक्स के अंदर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, बॉक्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस इवेंट ए और इवेंट बी और इवेंट सी कैन अकर। डन। तो अभी देखो हमारे पास सिलेक्शन के लिए 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट है और हमें 3-digit नंबर बनाना है। तो ये प्लेस पर मैं कितनी तरीके से नंबर पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास 5 नंबर है और रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन अलाउ मतलब एक बार मैंने सिलेक्शन कर लिया तो दूसरी बार मैं उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे 3-digit नंबर बनाना है, तो इवेंट ए के लिए मेरे पास टोटल कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन। ये 5 में से किसी एक नंबर को मैं यहाँ पर यूनिट प्लेस पर रख दूंगा। डन। वे मुझे टेंस प्लेस जो प्लेस है ना उसको फॉर्म करना है, तो यहाँ पर मुझे मेरे पास कितने ऑप्शन है, मैं रिपीटेशन कर सकता हूँ। तो एक बार मैंने यूज कर लिया वो फिर से मैं यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ पर अगेन मेरे पास कितने वेज है, 5 वेज, और यहाँ पर भी मेरे पास कितने टोटल वेज हैं, 5 वेज। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, और वी कैन से नंबर ऑफ 3-digit numbers कैन बी फॉर्म इज 5 into 5 into 5 इज इक्वल टू 125। बस ये आपका आंसर। दूसरा कैसे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, है ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, इट मीन्स एक डिजिट आपने यूज कर लिया ये 5 में से, तो आप उसको दूसरी बार यूज नहीं कर सकते हो। तो क्या होगा देखो, डन। टोटल 3 इवेंट्स आर देयर, ए बी सी। देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, दैट मीन्स एक बार मैंने डिजिट यूज कर लिया तो मैं दूसरी बार यूज नहीं कर पाऊंगा। तो पहला जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो मैंने 5 नंबर ऑफ वेज से मैंने फिल कर दिया,
दैट मीन्स 5 में से एक नंबर मैंने यहाँ पर यूज कर लिया। अभी जो मैं 10th प्लेस डिजिट यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा तो एक तो मैंने यूज कर दिया है और मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा। एक कोई भी डिजिट सपोज मैंने यहाँ पर 1 रख दिया तो अभी मेरे पास कितने बाकी बचेगा 4। तो 4 में से मुझे यहाँ पर फिलअप करना है। सो नंबर ऑफ वेज बाय विच दिस प्लेस कैन बी फॉर्म दिस 4 वेज। एंड यहाँ पर कितना होगा, एक और कम हो जाएगा क्योंकि 2 डिजिट मैंने यूज कर लिए, 5 में से 2 यूज कर लिए, अभी 3 ही डिजिट मेरे बचे। तो 3 वेज से मैं ये 100 प्लेस है ना वो फिल करवाऊंगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज बाय विच these 3 numbers are generated, 3 digit numbers is generated is 3 into 4 into 5, that is equal to 60 है ना। With repetition we can generate 125 3 digit numbers, and without repetition of digit we can generate 63 digit numbers. Clear students? Now question number 2. So question number 2 says that how many 3 digit even numbers can be formed? Now we have to form 3 digit even numbers from the given numbers 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अभी हमें 3 digit even number कंसीडर करना है। डन। if the digits can be repeated, repetition allowed, दोनों केस कंसीडर करते हैं, repetition allowed और repetition not allowed है ना। दिया नहीं है लेकिन कर लेते हैं, repetition allowed और दूसरा केस रिपीटेशन नॉट अलाउड। तो यहाँ पर अगेन हमें 3 डिजिट नंबर ही फॉर्म करना है, लेकिन कौन सा नंबर है अभी ये इवन नंबर। सो इवेंट ए, दिस इज बी एंड इवेंट सी। नाउ फॉर यूनिट इवन नंबर, फॉर इवन नंबर यूनिट प्लेस डिजिट मस्ट बी इवन नंबर। तो ये जो प्लेस है उसको फॉर्म करने के लिए हमारे पास टोटल कितने वेज है, कितने ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये जो नंबर है यूनिट टेंस क्या बोलते हैं इसको, यूनिट प्लेस डिजिट। तो यूनिट प्लेस डिजिट इवन नंबर के लिए है ना, हमें इवन नंबर फॉर्म करना है। तो ये वाला डिजिट आपका इवन नंबर ही होना चाहिए। तो आपके पास 6 4 एंड 2, आपके पास सिर्फ 3 ऑप्शन अवेलेबल है। अब 3 वेज है, टोटल नंबर ऑफ 3 वेज आर देयर बाय विच इवेंट ए कैन अकर। इवेंट ए इज सिलेक्शन ऑफ दिस यूनिट प्लेस डिजिट। आपके पास 3 ही डिजिट सिलेक्शन के लिए ऑप्शन है, तभी जाके इवन नंबर होगा। नाउ रिपीटेशन अलाउड, एक बार डिजिट यूज कर लिया आप दूसरी बार यहाँ पर रिपीट कर सकते हो। तो यहाँ पर भी आप कोई भी नंबर यूज कर सकते हो ये 6 में से। तो total number of ways are 6. Again repetition allowed, that is 6. So total number of ways by which we can generate 3 digit even number is 6 into 6 into 3, 36 into 3, 108. Clear students? Repetition allowed नहीं है, बोलो। देखो रिपीटेशन अलाउड नहीं है, हमें इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर कोई भी होगा, सपोज 128, उसका यूनिट प्लेस डिजिट क्या होना चाहिए, ऑलवेज इवन होना चाहिए। अब 121 करेंगे, यूनिट प्लेस पर ओड नंबर आ गया तो वो इवन नंबर नहीं होगा। तो ये जो प्लेस है वो हमारी ओड यूनिट प्लेस डिजिट है। सिलेक्शन के लिए हमारे पास टोटल 6 डिजिट अवेलेबल है। तो यहाँ से आप 135 रख सकते हो, यहाँ पर नहीं रख पाएंगे ना क्योंकि वो इवन नंबर नहीं होगा। इवन नंबर बनाने के लिए हमारे पास इवन नंबर ही होना चाहिए इसमें से। तो 246 को ही रख सकते हैं। तो 246 रखेंगे तो ये जो फर्स्ट प्लेस है यूनिट प्लेस डिजिट उसको फिल करने के लिए हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 3 वेज ओनली। तो 3 तरीके से हमने ये प्लेस फिलअप कर दिया है ना, आइदर बाय सिलेक्टिंग 2 4 और 6। अभी रिपीटेशन अलाउ नहीं है, दैट मीन्स हमने 2 4 6 में से एक डिजिट यहाँ पर यूज कर दिया तो वो वाला डिजिट आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो। सपोज हमने 2 यूज कर लिया तो अभी ये 2 रिपीट नहीं होगा, यहाँ पर रिपीट नहीं होगा। तो ये जो प्लेस है उसको फिल करने के पास, इसको फिल करने के लिए हमारे पास अभी कितने ऑप्शन बचे, हमें यूज करना है 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर आप इवन और ओड कोई भी नंबर यूज कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा है ना। तो यहाँ पर फिलअप करने के लिए आपने एक 2 तो यूज कर लिया, तो अभी कितने ऑप्शन बचे आपके पास, तो 5। रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो आपने ये जो 6 नंबर है उसमें से यहाँ पर एक यूज कर लिया नंबर, एक नंबर यहाँ पर यूज कर लिया। तो अभी आपके पास कितने नंबर बचे, ये 6 में से 4 बचे। तो ये फॉर्म को आप कितने तरीके से फॉर्म कर सकते हो, 4 वे से आप फिलअप कर सकते हो। डन। सो विदाउट रिपीटेशन नंबर ऑफ वेज बाय विच यू कैन जनरेट even 3 digit even number is 4 into 5 into 3, that is equal to 60.
अभी आया समझ में? अभी किसी को डाउट हो तो बोलो। सबको समझ में आ रहा है? पहले में, हाँ बोलो, पहले में मुझे आवाज नहीं आ रही है, क्या बोल रहे हो? Question number 3. Question is, how many four-letter codes can be formed using the first 10 letters of English alphabet if no letter can be repeated? No letter can be repeated. That means repetition is not allowed. Repetition is not allowed. We have to form four-letter codes. Four-letter codes. That means you have to generate one code which consists of four codes. And to generate this code, we have to use first 10 English alphabets. We have to use first 10 English alphabet. How many four letters codes can be generated using first 10 letters of English alphabet? So first 10 letters of English alphabets कौन से होते हैं? A, B, C, D, E, F, G, H, I. कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. H, I and J. These are the first 10 English alphabets. We have to form 4-digit code and repetition is not allowed. Repetition is not allowed. So we are considering 4 events, that is event A, event B, event C and event D. Event A is nothing but the filling this first box. Event B is nothing but the filling this second box. Event C is nothing but the filling this third box and event D is filling this fourth box. Now tell me, total how many ways are there by which I can fill this first box? ये फर्स्ट बॉक्स फिलअप करने के लिए ये कंसिडर करो या फिर ये कंसिडर करो, है ना? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये बॉक्स फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है, मैं कितनी तरीके से, हाउ मेनी वेज आर देयर बाय विच वी कैन फिल दिस बॉक्स? बोलो। 4। क्यों 4? मुझे ये 10 अल्फाबेट यूज करने हैं, 10 अल्फाबेट का यूज करके मुझे 4 डिजिट कोड बनाना है। तो यहाँ पर मैं ये 10 में से कोई भी रख सकता हूँ। तो टोटल हाउ मेनी वेज आर देयर? 10 वेज। और यहाँ पर आपको जो वर्ड यूज कर रहे हो ना, जो लेटर यूज कर रहे हो, वो आपको रिपीट नहीं करना है। एक बार सपोज आपने ई सिलेक्ट कर लिया, 10 में से ई सिलेक्ट कर लिया, तो वो ई आप यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हो। तो 10 यूज कर लिए, तो अभी यहाँ पर फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? हाउ मेनी वेज आर देयर? 9। क्लियर? अभी मैंने 2 बॉक्स यूज कर लिए, दैट मीन्स 2 अल्फाबेट यूज कर लिए। अभी यहाँ पर सी वाला फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने टोटल पॉसिबिलिटीज है? 8, क्योंकि रिपीटेशन नहीं कर सकते हैं ना। अभी हमने 3 यूज कर लिए, अभी इसमें से कोई भी 3 अल्फाबेट यूज हो गए, तो यहाँ पर फिलअप करने के लिए हमारे पास अभी कितनी होगी पॉसिबिलिटीज? हाउ मेनी वेज आर देयर? 7। डन। सो टोटल नंबर ऑफ 4 डिजिट कोड्स, total number of 4 letter codes that can be generated is nothing but the 7 into 8 into 9 into 10 मल्टीप्लीकेशन करो, वो आपका आंसर आएगा। क्या होगा मल्टीप्लीकेशन? बोलो फटाफट। किया है किसी ने मल्टीप्लीकेशन? कितना? 5040। okay, done. So total 5040 4 letter codes can be generated by using these 10 alphabets. Done. Now next question. देखो इसमें रिपीटेशन नॉट अलाउड था, इसमें रिपीटेशन अलाउ वाला केस करे तो रिपीटेशन अलाउड है ना। जो लेटर हम यूज कर रहे हैं उसको हम दोबारा यूज कर पाएंगे, और हमें एक 4 लेटर कोड जनरेट करना है। तो अभी कितने वेज होंगे, कितने लेटर जनरेट कर पाएंगे? बोलो। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो देखो फर्स्ट पेज को हम 10 वे से यूज कर सकते हैं क्योंकि 10 अल्फाबेट है। जो यहाँ पर यू अल्फाबेट यूज किया वो फिर से हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये प्लेस फिलअप करने के लिए हमारे पास अभी कितने ऑप्शन रहेंगे? 10, है ना, क्योंकि 10 दिए है टोटल, 10 लेटर 10 अल्फाबेट वही यूज करने हैं। यहाँ पर भी हम 10 यूज कर पाएंगे, यहाँ पर भी 10 यूज कर पाएंगे।
है ना, जो भी अल्फाबेट यहाँ पर यूज करे वो हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पर भी रिपीट कर सकते हैं, यहाँ पर भी रिपीट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हुए यहाँ पर 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, 10,000। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 says that how many 5-digit telephone number can be generated? What you have to generate? 5-digit telephone numbers can be generated using the digits 0 to 9. हमारे पास अभी दिया गया है 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना। देखो इसमें से सिलेक्ट करना है, उसके बाद अरेंज करना है। तो परम्यूटेशन एंड कम्यूटेशन बेस्ड क्वेश्चन है सब। सो हियर फॉर क्वेश्चन नंबर 4, how many 5-digit telephone numbers can be generated using the digits 0 to 9 if each number start with the 67 and no digit appears more than once? No digit appears more than one. That means repetition not allowed. And we have to form 5-digit telephone number. So consider this one is our 5-digit telephone number. 1 2 3 4 5. This will be 5-digit telephone number. No digit appear more than once. That means repetition is not allowed. And telephone number must be start with 67, है ना। ऐसा दिया देखो, how many 5-digit telephone number can be constructed using the digit 0 to 9 if each number start with 67? Number start with 67. That means if we consider our events, it's A, B, C, D and E. Now number start with 67. So this place must be consist of 6 and this consist of 7. That means event E, देखो ये बॉक्स हम कितनी तरीके से फिल कर सकते हैं, यहाँ पर 6 ही आना चाहिए, है ना, ये 6। तो इसको हम एक ही तरीके से फिलअप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर हम लिख रहे हैं नंबर ऑफ वेज बाय विच इवेंट ई कैन अकर। तो नंबर हमारा 67 से स्टार्ट होना चाहिए। दैट मीन्स पहला नंबर कौन सा आना चाहिए, 6 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो प्लेस फिलअप करने के लिए हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है, 1, क्योंकि यहाँ पर हम 6 ही रख सकते हैं। सेकंड प्लेस के लिए ये भी फिक्स ही है कि 7 ही रखना है, तो उसको हम एक ही तरीके से फिलअप कर सकते हैं। ये समझ में आया ना। 5 डिजिट टेलीफोन नंबर हमें कंस्ट्रक्ट करना है। ये 5 डिजिट टेलीफोन नंबर के लिए हमें यूज करने हैं डिजिट 0 to 9। कंडीशन, आप कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर सकते हो, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। देखो लास्ट स्टेटमेंट दिया है, so no digit appears more than one, no digits appear more than one, that means repeat नहीं होने चाहिए। and telephone number must be start with 67, तो पहला डिजिट 6 होना चाहिए, दूसरा डिजिट 7 ही होना चाहिए। तो यहाँ पर आप 6 ही रख पाएंगे। दैट मीन्स ये जो फर्स्ट बॉक्स है दैट कैन बी फिल अप बाय ओनली वन वे, आप उसको 6 ही रखेंगे तो उसको हम वन वे बोलेंगे। दूसरा बॉक्स वहां पर आपको 7 ही रखना है, तो दूसरा बॉक्स फिलअप करने के लिए आपके पास कितने वेज है, हाउ मेनी वेज बाय विच यू कैन फिल अप दिस इवेंट डी, ओनली वन वे। डन। अभी आपने 6 यूज कर लिया, 7 यूज कर लिया। नाउ फॉर दिस इवेंट सी, यहाँ पर अभी आपको रिपीट नहीं करना है। दैट मीन्स आपने 6 7 यूज कर लिया। अभी ये जो प्लेस है आप कितनी तरीके से आप फील कर सकते हो, बोलो अभी। तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 तरीके से फिलअप कर सकते हो। यस और नो? अभी आपने एक डिजिट यूज कर लिया। नाउ यहाँ पर अभी आपके पास 3 7 और यहाँ पर 6। इज दैट क्लियर स्टूडेंट्स? अभी क्लियर हो रहा है? So how many telephone numbers can be generated? So it's a 1 into 1 into 8 into 7 into 6. So this is our answer. करो multiplication. कितना? 336। डन। देखो ये था। अभी हम दूसरा केस जो नहीं दिया वो भी कंसिडर करते हैं ना, जैसे हमारा कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, एकदम क्लियर हो जाए। रिपीटेशन नॉट अलाउड था, अभी हम देखते हैं। चलो रिपीटेशन अलाउड है। आपने जो डिजिट यूज किया वो आप फिर से यूज कर सकते हो, रिपीटेशन अलाउड। तो देखो कितने टेलीफोन नंबर जनरेट होंगे। कंडीशन हम वही रखेंगे। क्या कंडीशन है हमारी, कि जो नंबर है वो 67 से स्टार्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर 6 ही रखना है, यहाँ पर 7 ही रखना है। तो ये वाला जो बॉक्स है आप एक ही तरीके से फिल कर सकते हो, ये भी आप एक ही तरीके से फिल कर सकते हो। अभी कोई मुझे बताएगा बाकी के नंबर के लिए क्या आएगा? वी कैन रिपीट द डिजिट्स। तो आपने यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर 7 रख दिया। अभी सी को फिलअप करने के लिए, है ना, ये फिक्स था,
ये फिक्स है, तो इसको आप ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट करो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, ये बॉक्स फिक्स है, ये आपको यहाँ पर 6 ही रखना है। डन। अभी देखो सी को फिलअप करने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शन है, मैं यहाँ पर क्या क्या रख सकता हूँ, रिपीटेशन अलाउड है। रिपीटेशन अलाउड मीन्स आप यहाँ पर 6 भी यूज कर सकते हो, 7 नंबर भी यूज कर सकते हो, बाकी सब नंबर यूज कर सकते हो। तो कितने नंबर है हमारे पास, 10, तो यहाँ पर आप 10 नंबर यूज कर सकते हो, तो 10 आएगा। क्लियर। ये प्लेस के लिए, बी इवेंट के लिए कितने वेज है मेरे पास, यहाँ पर भी रिपीटेशन अलाउड, जो भी डिजिट यूज किया आप फिर से यूज कर सकते हो। सेम वे हियर आप उसको फिर से यूज कर सकते हो। सो हियर टोटल नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स कैन बी जनरेटेड इज 1 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 10, कितना होगा, 1000, है ना। डिजिट्स रिपीट करके आप 1000 नंबर ऑफ टेलीफोन नंबर्स जनरेट कर सकते हो। दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 67, और उसके अंदर मैंने नंबर यूज किए 0 to 9। अंडरस्टूड, है ना। अभी आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। Question number 5 says that a coin is tossed 3 times. A coin is tossed 3 times and the outcomes are recorded. आपको एक कॉइन है उसको टॉस करना है और उसके आउटकम्स को आपको रिकॉर्ड करना है। सो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, अ कॉइन टॉस 3 times। देखो ये प्रोबेबिलिटी में भी हमने स्टडी किया था, तो किसी को याद होगा टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स व्हाइल टॉसिंग अ कॉइन्स 3 times, कितने आउटकम होते हैं, क्या 4, 3 times के लिए 8 आउटकम थे, है ना। तो वो 8 आउटकम्स फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का यूज करके कैसे आएंगे, देखो कॉइन टॉस 3 times और हम उसका आउटपुट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हमें पता है कि कभी कभी भी किसी की कॉइन को हम टॉस करेंगे तो किसी भी कॉइन को टॉस करने से हमारे पास टोटल कितने आउटकम मिलते हैं, 2 आउटकम्स। either it can be head or it can be tail, either it can be head or it can be tail, 2 outcomes are there। कॉइन को हम कितनी बार टॉस कर रहे हैं, 3 times। so this is event A, event B and event C। पहली बार टॉस करे वो हमारा इवेंट ए है, दूसरी बार कॉइन को टॉस करे दैट इज और इवेंट बी, और तीसरी बार टॉस करे उसका है इवेंट सी। तो पहली बार हम कॉइन को टॉस करेंगे तो कितने आउटकम मिलेंगे, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर, आइदर इट कैन बी हेड और टेल, 2 आउटकम आएंगे। दूसरी बार टॉस करेंगे हेड और टेल, और तीसरी बार टॉस करेंगे हेड और टेल, और हमें है ना कॉइन को 3 बार टॉस करना है, दैट मीन्स ए बार एंड, दूसरी बार एंड, तीसरी बार, तीनों का एडिशन करना है ना। एंड सॉरी, एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन करना है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 8। क्लियर। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ रिपीटेशन नॉट अलाउड वाला केस आएगा, बोलो तो। यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउ वाला केस आएगा, वो केस यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है, ठीक है। रिपीटेशन अलाउ और नॉट अलाउ वाला केस यहाँ पर एप्लीकेबल ही नहीं है, अब वो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। क्लियर। तो दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स, ओके चलो। नाउ लास्ट क्वेश्चन, गिवन 5 flags of different colors, 5 flags are there, number of flags are 5 of different colors are there, how many different signals can be generated if each signal requires to use 2 flags one below another, है ना। we have to generate the signal and that signal consists of 2 flags one upon another, है ना, एक के नीचे दूसरा दिया हुआ है। आपको एक ऐसे सिग्नल जनरेट करना है। सिग्नल जनरेट करने के लिए आपको टोटल 5 फ्लैग्स है, वो 5 फ्लैग का यूज करना है। तो सिंपल बात है, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ और रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला केस आएगा, है ना। रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला ही आएगा, क्यों, क्योंकि एक बार आपने फ्लैग यहाँ पर रख दिया तो वो फ्लैग उठा के आप नीचे नहीं रख सकते हो, है ना। वो फ्लैग आप रिपीटेडली यूज नहीं कर सकते हो, तो ऑटोमेटिकली ये कौन सा केस आ गया, रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला केस आ गया। समझ में आया। क्योंकि टोटल हमारे पास 5 कलर के डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग है और हमें एक सिग्नल जनरेट करना है,
तो यहाँ पर एक फ्लैग आप यहाँ पर रखेंगे सपोज रेड कलर का, तो वो रेड कलर का फ्लैग आप नीचे नहीं रख पाएंगे क्योंकि आपके पास टोटल एक ही फ्लैग है, तो आप रिपीट कर ही नहीं पाएंगे, तो ये ऑटोमेटिकली रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला केस ही है ना। यहाँ पर रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला केस एप्लीकेबल ही नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 6 में ऑटोमेटिकली रिपीटेशन नॉट अलाउ वाला केस है। डन। अभी देखो सिग्नल जनरेट करना है, तो ए प्लेस पर मैं कितने फ्लैग रख सकता हूँ, कितनी पॉसिबिलिटीज है मेरे पास? 5 है ना। 5 फ्लैग में से कोई भी एक फ्लैग रखूंगा, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ 5 वेज बाय विच आई कैन फिल दिस प्लेस। अभी 5 में से एक फ्लैग मैंने यहाँ पर यूज कर दिया है ना, 5 तरीके हैं मेरे पास, 5 तरीके में से एक तरीके से मैंने यहाँ पर एक फ्लैग यूज कर लिया। अभी दूसरा प्लेस बी को फिलअप करने के लिए मेरे पास कितने वेज होंगे? 4 है ना, एक फ्लैग यूज कर लिया तो अभी मेरे पास 4 ही बचेंगे। सो टोटल नंबर ऑफ वेज, और वी कैन से टोटल नंबर ऑफ सिग्नल, total number of signals can be generated is equal to 5 4 जा 20 is the answer. Clear students?